आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं अल-अमन वेलफेयर ट्रस्ट के इदारे में हूँ। यहाँ पे तकरीबन 2 दिन से जो कर्नाटक के हैदराबाद के लोग यहाँ पे तकरीबन 25 इदारे के लोग यहाँ पे मौजूद थे। ये मकसद डॉक्टर फारूक साहब का ये मकसद था कि तमाम इदारे मिलकर एक साथ काम करने का, क्योंकि छोटे मोटे इदारे जो है वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। इदारे हैं वो पूरे एक साथ मिलकर एक इदारे के साथ मिलकर काम करें। आइए जानते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। ನಾವು ಕಣ ಹಾಕಿ ಖರ್ಚಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಂಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಷ್ಟ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. Department knows what are the documents you keep. We will send this right to do activity in this country. Whoever be the government, whoever be the strong person, we are not going to be bothered about it. It's our country. It is not somebody, I'm a beggar here, I'm not a beggar here. Why should we be frightened? But I should go against the law. Over. You see, you become strong. It's not because of strong. That's why we are very bad men. We say that we are above the law. Nobody can be above the law. Ashram, nobody can be above the law. Let us make the law. So madrasas how to register. See, educate them. Let us have our Muslim children educated in the Muslim faith. Christian children, Christian faith. You support some Christian children, we will support some Muslim children. And that is the way we should be. Also in Bangalore also. Yeah. You get us one permission. Sure. Permission. Sure. So the same thing we can show it, because the madrasa people are afraid. Yeah. We don't want to come under government's policies. This is what happening. We had a discussion regarding this. Okay, what they say, we don't want their money, we don't want their schemes, we don't want to come under government. These are religious things, we'll keep it. They are stubborn because they are afraid. Afraid. So we have to show them. One sample madrasa will register in Bangalore also we have, and in Raichur also we have. So you do one thing, you just get us one sample permission. साजिद भाई ये चीज प्लेटफॉर्म लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब टाइम आ गया है कि हम लोग मिल के काम करें, जुड़ के एक दूसरे के साथ काम करें। यही हमारा मकसद है पूरे एनजीओस को बुला के यहाँ पे एक मीटिंग करने का। और वैसे भी आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी उनको परमिशन चाहिए तो दे हैव टू कम टू बैंगलोर। अब बैंगलोर आने के बाद दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि कहाँ पे रुकना, किससे मिलना, कहाँ जाके परमिशन लेना, ऑल दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एक तो ट्रैवल करके आते हैं, तो फॉर देम दे कैन कम इन, दे कैन स्टे ओवर हियर इन आवर एनजीओ, whatever help they want, alhamdulillah, with inshallah we will provide it to them. So that is our main purpose of gathering all the NGOs, because we want work to be done in all the districts and it should be done properly. They just need a channel. So alhamdulillah, if we can provide them to them, we'd be very happy if we can do that. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದುಗೂಡಿ
ಮಾನವರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರೆ ಮಾನವಿಕತೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಒಂದೇ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ, ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. अल्लामान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और इफ़ा फाउंडेशन रायचूर की तरफ से है ना 2 दिन का है ना NGO कॉन्फ्रेंस मुनक़द किया गया है बेंगलुरु में. हमारे अल्लामान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है KG हल्ली में, आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में. तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 11 बजे से जो शुरू हुआ, उलमा इकराम, सारे मसलकों के उलमा इकराम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फ्रेंस बहुत बेहतरीन अंदाज में आज ख़त्म हुई है. इसमें तय पाया गया है कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम शुरू होगा. उसके बाद हम लोगों का काम है ना हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट्स और बेंगलुरु के बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में काम आगे बढ़ेगा. ये तय पाया है कि जो नए NGOs हैं वो है ना अल्लामान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर में है ना, वहाँ पे है ना वो अल्लामान ट्रस्ट के नाम से ही वहाँ पे है ना शुरू हो गए इंस्टीट्यूशंस, ब्रांचेस बनाए जाएंगे. अभी रायचूर में अल्हम्दुलिल्लाह आशियाना ओल्ड एज होम के नाम से इफ़ा फाउंडेशन और अल्लामान ट्रस्ट के मातहत एक जगह ली गई है. हमारे साजिद भाई उसकी पूरी कोशिश करके है ना एक जगह लिए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह उसका है ना संगे बुनियाद है. इंशाअल्लाह उसका डेट तय करके उसको कंस्ट्रक्शन उसमें शुरू करेंगे. तो इस तरह से इफ़ा फाउंडेशन में है ना जो हमारा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चल रहा है यहाँ पे आशियाना का, उसी अंदाज में है ना रायचूर में इफ़ा फाउंडेशन में भी वो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह. इस तरह से है ना सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे पैमाने पे शुरू करेंगे. हर मोहल्ले में इसकी ज़रूरत है. एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, कैरियर गाइडेंस सेंटर होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए. बच्चों के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की बहुत कमी है. तो इस वास्ते हम लोगों की कोशिश है कि हम सारे NGOs को कनेक्ट करें एक दूसरे से. जो भी हम काम कर रहे हैं एक दूसरे से शेयर करें. और बेंगलुरु में हम लोग है ना ये हेड ऑफिस बना रहे हैं यहाँ पे अल्लामान ट्रस्ट के ऑफिस में, कि कोई भी NGO बाहर से आए डिस्ट्रिक्ट वाइज और बाहर स्टेट से, तो यहाँ पे आके हमारे ऑफिस में इंतज़ाम रहेगा उनके लिए. हर तरह का उनको सहूलत दी जाएगी. हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, कहाँ जाना है, कौन से ऑफिस में जाके किससे बात करना है और कौन से इदारे से क्या काम लेना है, कौन सी फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेगी. हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पे है ना बेंगलुरु में है ना हमारा एक जो इदारा है वो है ना ज़िम्मेदारी ले रहा है. एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम लोग यहाँ पे. तो इस तरह से है ना जो भी है ना हेल्थ के बारे में और दूसरे एजुकेशन के बारे में स्कीम्स वगैरह और जहाँ भी जिसका काम जिस कनेक्ट करने के लिए हम लोग है ना हेल्थ और एजुकेशन के ताल्लुक़ से हम लोग काम करेंगे. तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग मसले होते हैं. तो उसके रजिस्ट्रेशन ATG 12A जो भी मसले रहेंगे इंशाअल्लाह हम लोग उनको गाइड करके हम लोग बेंगलुरु से हम लोग है ना डिस्ट्रिक्ट में काम करा के देंगे इंशाअल्लाह. तो इस तरह से है ना आप लोगों से भी गुजारिश है, जो भी इदारे हैं ये प्लेटफॉर्म में आएँ और एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. आज का जो दौर चल रहा है इसमें हम लोगों को एक साथ आना ज़रूरी है.
क्योंकि बहुत देर हो चुके हैं और हम लोग अगर देर करेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगे। तो आने वाली नस्ल के लिए एटलीस्ट हम लोग आज शुरू करेंगे तो आज से 10-15 साल के बाद इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो तय पाया गया है कि सारे मसलकों के उलमा इकराम हमारे साथ हैं और उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ये सारा जो भी NGOs हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं खरियों में हैं, इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती में हम लोग है ना काम। मैं रायचूर से इफ़ा फाउंडेशन का सदर हूँ और मेरे साथ 10 डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार आए हुए हैं साथ में। हम लोग एक लिमिटेड हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करने का, जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के हद तक हम काम कर रहे थे। तो हम लोग ये कोशिश ये सोचे कि भाई सब मिलके एक जगह, एक बेंगलुरु में एक हमारा बेस हो, तो हमारे साथ में कोई काम बड़ा हो। और हम लिमिटेड में काम कर रहे हैं, अभी फ्री फूड चलाते हैं, मेडिकल कैंप्स कराते हैं, स्कूल चलाते हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो महदूद रह गए। तो हम लोग चाह रहे थे कि भाई बेंगलुरु से बेस बना के यहाँ से कई तंजीमों के साथ जुड़ के बड़े पैमाने पे एजुकेशन पे, हेल्थ पे और कई इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट पे इस पर काम करेंगे बोल के ये अल-अमान ट्रस्ट से हम लोग टाई अप हुए हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो तंजीमें हैं अलग अलग अपने अपने नाम से, इनके बैनर के नीचे इन एसोसिएशन विथ अल-अमान एजुकेशन ट्रस्ट को बेस बनाए हम लोग अम्ब्रेला में आ गए हैं। अपनी ट्रस्ट तो अपनी जगह रही थी, तो ये ट्रस्ट के अंडर में हम लोग काम करेंगे पूरा। और जैसे कि अनाउंसमेंट जैसा हुआ, आशियाना ओल्ड एज होम यहाँ पे बेंगलुरु में है, नेक्स्ट हमारे को हैदराबाद में एक फातिमा ओल्ड एज होम। ये अभी टोटल इनके पास 50, उनके पास 50, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये सोचते हुए आशियाना का एक ब्रांच वहाँ पे खोलेंगे इन कोलैबोरेशन इफ़ा फाउंडेशन और ये दोनों मिल। तो और कई काम हैं जो मिल के करना चाह रहे हैं बस। सर, आज कौम में जहाँ पे इतिहास नीति करनी है, इसमें आप इस तरह के NGOs को जो मुत्तहिद कर रहे हैं, क्या आपकी अंजुमन मुत्तहिद होने के बाद कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है प्लेटफॉर्म पे बने जिसके अंदर आप काम करने वाले हैं? अभी जो NGO का काम है पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी के वास्ते नहीं रहता है, पर्टिकुलर एक कौम के वास्ते नहीं, ये तो खिदमत के खल्क़ है। ईमान के 99 दर्जे हैं, उसमें एक दर्जा ये है कि भाई ईमान खिदमत खल्क़ वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। बयान तो होता कि भाई पानी पिलाना सुन्नत है, तो पिलाने वाला कौन? तो इसलिए ये से तंजीमों को हम लोग एक टाई अप कर लेके खाना खिलाना सुन्नत है, बीमार की इयादत करना, ये काम के वास्ते थोड़ा टाई अप हो रहा है। अब जैसा कि मैं रायचूर में हूँ, मेरा एक पेशेंट है कि भाई बेंगलुरु को लाना है, तो यहाँ पे मेरा कोई सोर्स नहीं था, तो हैदराबाद भेजना है तो वहाँ पे भी सोर्स नहीं है, तो हम लोग एक टाई अप होते हैं तो एक दूसरे को हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्या आपके NGOs मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बड़ा सवाल? ये अभी तो हम एक इस टाइम पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये तो कल से जो बात हुई, इसको कैसा बनाना, कैसा अब मुत्तफ़िक़ राय आई कि भाई ये बनाना ज़रूरी है, इसको क्या करना। एक थिंक टैंक बनाएंगे हम बेंगलुरु में, यहाँ पे जैसा कि बड़े लोग हैं जैसा कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे कि भाई क्या प्रोग्राम बनाना है। अभी तो मुस्लिम तंजीमें इसमें साथ में है, हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके दूसरे भी कम्युनिटी के भी लेके हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अब ये जितना भी खिदमत खल्क़ का काम है तो ये कम्युनिटी को लेकर नहीं करते हम लोग। जैसा कि रायचूर की तंजीम है मेरी, जिसमें कई अलग अलग कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। इतनी सारी तंजीमें बेंगलुरु में अल-अमान के पास आए हैं, क्यों आए आप अल-अमान के पास? क्या देखा आपने अल-अमान में? ना हम पैसा देखे ना तो कुछ भी ऐसा, ये गलतफहमी है कि वो लोग अल-अमान में बहुत तो पैसा होगा हमारे बहुत। हमारी तंजीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है। हमारे को रहबरी की ज़रूरत थी, ये रहबरी के वास्ते हम आए हैं। ये एक 25 साल का इदारा है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, इनके पास काबिल लोग हैं, इनके पास ऑडिटर्स सही हैं, इनको गाइड करने वाले हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब नहीं होता, तो हम चाह रहे थे कि भाई हमारा काम भी किसी के रहबरी में हो, कोई गाइड हो कि जो हमारे को रहबरी करे। बेंगलुरु में हम कोई भी काम करने को आते हैं तो हमारे को कोई भी गाइडेंस नहीं है यहाँ पे, या तो किसी ऑफिसर से मिलना रहे तो भी हमारे वास्ते मुश्किल है। तो हम चाह रहे थे कि भाई एक अम्ब्रेला के तहत काम तो उनका भी वही है, हमारा भी वही है। मेरा नाम शाफिया फ़ारूक है और मैं सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के दौर में एजुकेशन तो हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन हमारे लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं। बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके जो हस्बैंड्स हैं वो अब्यूज़िव निकलते हैं, घर का रेंट नहीं होता, फिर राशन मैनेज नहीं होता, बच्चों की फ़ीस मैनेज नहीं होती, तो ड्रॉप आउट्स बन जाते हैं बच्चे। तब ये जो जवान लड़कियां हैं जो माँ बन जाती हैं, हाउसवाइफ्स बन जाते हैं,
एनजीओज़ भटकते रहते हैं कि बच्चों की फ़ीस पे कर दें और राशन दे दें। तो ऐसे लड़कियों को, औरतों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ हम लोग उनको फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, इंग्लिश में बात करना सिखाते हैं, या मेहंदी लगाना सिखाते हैं, टैली सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते, ताकि ये लोग बेसिक एटलीस्ट एक 10-12 हज़ार रुपये कमाने की लायक की जॉब हासिल कर सकें और अपना घर अपने आप चला सकें। तो ये चीज़ ना कि सिर्फ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जगह में, आई मीन अदर स्टेट्स, दूसरे मोहल्ले, एवरीवेयर दिस हैज़ टू बी स्टार्टेड। तो हमारे ट्रस्ट से हम लोग जो यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी काम शुरू करे हैं विद इन 30 ऑफ एज, ये लोग ज़्यादा एन्जॉयमेंट में वक्त गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं और इनकरेज करते हैं कि वॉलंटियर करें ऐसे बच्चों को या लड़कियों को पढ़ाने के लिए। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आपके पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, ये लोगों को सिखाएं ताकि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। आपकी सर्विसेज फ्री हैं या उसके कुछ चार्जेस लेते हैं? हमारे सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, बिकॉज हम लोग सब वॉलंटियरिंग पे करते हैं। ये आपका ट्रेनिंग पूरा होने के बाद क्या आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट? यस, डेफिनेटली हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तकरीबन जितने भी बच्चियाँ सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा, सर्टिफिकेट ले चुके हैं, हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी हासिल हो। नाज़रीन, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाता रहूँगा। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।